Hello friends, welcome to our Premium Institute channel. Friends, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 50+ MCQ on central government schemes. Let's start the video. 1. What is the primary objective of the PM Surya Ghar मुफ्त बिजली योजना? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर B. Providing rooftop solar panels. Rooftop solar panel प्रदान करना. 2. Under the PM Surya Ghar Yojana, how many units of free electricity are provided per month? PM सूर्य घर योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है? आंसर C. 300 units. 3. Who are the primary beneficiaries of the PM Vishwakarma scheme? PM विश्वकर्मा योजना के प्राथमिक लाभार्थी कौन है? आंसर B. Artisans and craftspeople. कारीगर और शिल्पकार. 4. How many traditional trades are covered under the PM विश्वकर्मा scheme? PM विश्वकर्मा योजना के तहत कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है? आंसर C. 18. 5. What is the concessional interest rate for collateral-free loans under PM विश्वकर्मा? PM विश्वकर्मा के तहत बिना गारंटी वाले ऋण के लिए रियायती ब्याज दर क्या है? आंसर B. 5%. 6. Which marginalized group is the target of the Janman scheme? PM जनमन योजना का लक्ष्य कौन सा हाशिए पर रहने वाला समूह है? आंसर C. Particularly vulnerable tribal groups. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह. 7. आयुष्मान भारत PMJ scheme was expanded to cover which age group regardless of their income? आयुष्मान भारत PMJ योजना का विस्तार आय की परवाह किए बिना किस आयु वर्ग को कवर करने के लिए किया गया? आंसर C. Senior citizens aged 70 and above. 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक. 8. What is the health coverage amount provided to senior citizens under the new PMJ expansion? PMJ के नए विस्तार के तहत वरिष्ठ नागरिकों को कितनी स्वास्थ्य कवरेज राशि प्रदान की जाती है? आंसर B. ₹5 lakh per family. 9. What is the purpose of the PM Vidyalakshmi scheme? PM विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? आंसर C. Financial support for higher education loans. उच्च शिक्षा ऋण के लिए वित्तीय सहायता. 10. What is the maximum loan limit that is collateral free and guarantor free under PM Vidyalakshmi? PM विद्यालक्ष्मी के तहत बिना गारंटी और बिना गारंटर वाले ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? आंसर B. 7.5 lakh. 11. The NPS Vatsalya scheme allows parents to open pension accounts for whom? NPS वात्सल्य योजना माता पिता को किसके लिए पेंशन खाता खोलने की अनुमति देती है? आंसर C. Minors. नाबालिगों के लिए. 12. At what age does the NPS Vatsalya account seamlessly convert into a regular NPS Tier 1 account? किस उम्र में NPS वात्सल्य खाता सहजता से नियमित NPS टियर 1 खाते में बदल जाता है? आंसर B. 18 years. 13. The PM eDrive scheme was launched to replace which previous scheme? PM eDrive योजना को किस पिछली योजना को बदलने के लिए शुरू किया गया था? आंसर A. Fame Phase 2. 14. What is the primary focus of the PM eDrive scheme? PM eDrive योजना का प्राथमिक फोकस क्या है? आंसर C. Adoption of electric vehicles, EVs. इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना. 15. The Bioride scheme aims to promote research and development in which sector? बायोराइड योजना का उद्देश्य किस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है? आंसर B. Biotechnology. जैव प्रौद्योगिकी. 16.
What is the target number of women the government aims to make लखपति दीदीज? सरकार का लक्ष्य कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का है? आंसर सी 3 crore. 17. The Lakhpati Didi initiative is implemented through which groups? लखपति दीदी पहल किन समूहों के माध्यम से लागू की जाती है? आंसर बी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह. 18. What is the minimum annual household income target for a लखपति दीदी? लखपति दीदी के लिए न्यूनतम वार्षिक पारिवारिक आय का लक्ष्य क्या है? आंसर 1 lakh. 19. The Mishti scheme is related to the conservation of what? मिष्टी योजना किसके संरक्षण से संबंधित है? आंसर सी मैंग्रोव्स. 20. What does the प्रणाम scheme aim to promote? पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या बढ़ावा देना है? आंसर ए अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग. 21. The Amrit Dharohar scheme is implemented for the optimal use and protection of. अमृत धरोहर योजना किसके इष्टतम उपयोग और संरक्षण के लिए लागू की गई है? आंसर बी वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि. 22. What is the fixed interest rate offered under the महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के तहत दी जाने वाली निश्चित ब्याज दर क्या है? आंसर सी 7.5%. 23. What is the maximum deposit limit under the महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के तहत अधिकतम जमा सीमा क्या है? आंसर बी ₹2 lakh. 24. The यूविन पोर्टल डिजिटाइज रिकॉर्ड्स फॉर विच एक्टिविटी? यूविन पोर्टल किस गतिविधि के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करता है? आंसर सी वैक्सीनेशन फॉर प्रेग्नेंट विमेन एंड चिल्ड्रन, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए टीकाकरण. 25. The PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान focuses on the development of. PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान किसके विकास पर केंद्रित है? आंसर सी ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस, आदिवासी बहुल गांव. 26. The loan limit under the Tarun category of the PM Mudra Yojana was increased from ₹10 lakh to. PM Mudra योजना की तरुण श्रेणी के तहत ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? आंसर बी ₹20 lakh. 27. The Model Skill Loan Scheme limit was revised in 2024 to support students pursuing skill courses. What is the new limit? कौशल पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों का समर्थन करने के लिए 2024 में मॉडल कौशल ऋण योजना की सीमा को संशोधित किया गया था. नई सीमा क्या है? आंसर बी ₹7.5 lakh. 28. The revamped Asha scheme guarantees remuneration to farmers for what? संशोधित पीएम आशा योजना किसानों को किस चीज के लिए पारिश्रमिक की गारंटी देती है? आंसर सी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य. 29. The पृथ्वी विज्ञान स्कीम ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? पृथ्वी विज्ञान योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? आंसर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय. 30. The मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म was launched to benefit youth in which age group? मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म किस आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया था? आंसर बी 15 to 29 years. 31. The Divine scheme is specifically aimed at funding infrastructure and social projects in which region? PM डिवाइन योजना विशेष रूप से किस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सामाजिक परियोजनाओं के वित्तपोषण के उद्देश्य से है? आंसर बी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पूर्वोत्तर क्षेत्र. 32.
The PM Usha scheme is an upgraded version of the Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan, RUSA. It focuses on PM Usha योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उन्नत संस्करण है। यह किस पर केंद्रित है? आंसर बी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उच्च शिक्षा संस्थान। 33. The Vibrant Villages program aims to comprehensively develop villages located along Vibrant Village program का उद्देश्य किनके किनारे स्थित गांवों का व्यापक विकास करना है? आंसर सी, नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर्स, उत्तरी भूमि सीमाएं। 34. PM मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना is a sub-scheme launched to boost which sector? PM मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक उपयोजना है? आंसर सी, फिशरीज, मत्स्य पालन। 35. What is the target production of green hydrogen by 2030 under the National Green Hydrogen Mission? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य क्या है? आंसर सी, 5 million metric tons. 36. The Namami Gange Phase 2 mission has been extended up to which year? नमामि गंगे चरण 2 मिशन को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? आंसर बी, 2026. 37. The PM e-bus Seva scheme aims to deploy how many electric buses in cities? PM e-bus सेवा योजना का लक्ष्य शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें तैनात करना है? आंसर बी, 10,000. 38. The PM Vishwakarma scheme provides a daily training stipend of how much to the artisans? PM विश्वकर्मा योजना कारीगरों को कितना दैनिक प्रशिक्षण वजीफा प्रदान करती है? आंसर सी, ₹500. 39. Under the PM Vishwakarma scheme, what is the amount provided as a toolkit incentive? PM विश्वकर्मा योजना के तहत टूलकिट प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? आंसर सी, ₹15,000. 40. What is the target number of households to be covered under the PM Surya Ghar मुफ्त बिजली योजना? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने घरों को कवर करने का लक्ष्य है? आंसर बी, 1 crore. 41. The निर्यात ऋण विकास योजना निर्विक primarily assists which sector? निर्यात ऋण विकास योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र की सहायता करती है? आंसर बी, स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर्स, छोटे पैमाने के निर्यातक। 42. Which ministry is the nodal agency for the जनमन scheme? PM जनमन योजना के लिए नोडल एजेंसी कौन सा मंत्रालय है? आंसर बी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय कार्य मंत्रालय। 43. The PM Vidyalakshmi scheme targets students securing admission in institutions ranked within the top in the NIRF rankings. PM विद्यालक्ष्मी योजना उन छात्रों को लक्षित करती है जो NIRF रैंकिंग में शीर्ष संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करते हैं। आंसर बी, 860. 44. The PM Asha scheme has 3 components: PSS, PDPS, and PPSS. What does PSS stand for? PM आशा योजना के 3 घटक हैं: PSS, PDPS और PPSS. PSS का पूर्ण रूप क्या है? आंसर ए, प्राइस सपोर्ट स्कीम, मूल्य समर्थन योजना। 45. Which of the following is not a component of the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund extended till 2026? निम्नलिखित में से कौन सा 2026 तक विस्तारित पशुपालन अवसंरचना विकास कोष का घटक नहीं है? आंसर डी, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, कपड़ा निर्माण। 46. The National Quantum Mission was approved in 2023 with a target timeline spanning from 2023 to 24. राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को 2023 में 2023 से 24 से कब तक के लक्षित समय के साथ अनुमोदित किया गया था?
Answer B. 2028-29. 47. PM Yashasvi scheme provides scholarships for students belonging to which categories? PM यशस्वी योजना किन श्रेणियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है? आंसर बी. OBC, EBC and DNTs. 48. Under the Gobardhan scheme, the primary focus is to convert waste into. गोबर्धन योजना के तहत प्राथमिक फोकस कचरे को किसमें बदलना है? आंसर ए. बायोगैस, CBG. 49. The Mahila Samman Savings Certificate has a maximum tenure of how many years? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का है? आंसर बी. 2 years. 50. Under the extended PM Swanidhi scheme, what is the maximum loan amount available in the third tranche for street vendors? विस्तारित PM स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों के लिए तीसरी किश्त में उपलब्ध अधिकतम ऋण राशि क्या है? आंसर सी. ₹50,000. 51. Which ministry launched the Vatsalya scheme? वात्सल्य योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? आंसर ए. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. वित्त मंत्रालय. 52. PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान covers approximately how many tribal majority villages? PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में लगभग कितने आदिवासी बहुल गांवों को शामिल किया गया है? आंसर सी. 63,000. 52. What does the S in PM Usha stand for? PM Usha में S का क्या अर्थ है? आंसर बी. शिक्षा, एजुकेशन. 53. Under the Ayushman Bharat PMJ 70+ expansion, how do eligible senior citizens enroll? आयुष्मान भारत PMJ 70+ विस्तार के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिक कैसे नामांकन करते हैं? आंसर बी. They must apply for a new distinct आयुष्मान कार्ड. उन्हें एक नए विशिष्ट आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन करना होगा. 54. The E-Shram portal targets the registration of which workforce? E-Shram पोर्टल किस कार्यबल के पंजीकरण को लक्षित करता है? आंसर सी. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स. असंगठित क्षेत्र के श्रमिक. 55. What is the subsidy provided per kilowatt for the first 2 kilowatt of solar capacity under PM सूर्या घर? PM सूर्य घर के तहत सौर क्षमता के पहले 2 किलोवाट के लिए प्रति किलोवाट कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? आंसर सी. ₹30,000. 56. What is the total financial outlay for the newly announced Biopharma Shakti scheme? नए घोषित बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? आंसर बी. ₹1,000 crore. 57. The Bharat Vistar platform launched in 2026 is an AI-based tool primarily designed for which sector? 2026 में शुरू किया गया भारत विस्तार प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया एक AI आधारित टूल है? आंसर सी. एग्रीकल्चर. कृषि. 58. Under the caregiver training scheme announced in 2026, how many caregivers are targeted to be trained with blended health and allied skills? 2026 में घोषित caregiver training scheme के तहत मिश्रित स्वास्थ्य और संबद्ध कौशल के साथ कितने देखभालकर्ताओं caregivers को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर सी. 1.5 lakh. 59. What is the total corpus of the newly introduced SME Growth Fund to support small and medium enterprises? लघु और मध्यम उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए नवप्रकट SME Growth Fund का कुल कॉर्पस कितना है? आंसर सी. ₹100 billion. 60. The Reservoir Development Scheme aims to support the integrated development of how many reservoirs and Amrit Sarovaro to strengthen fisheries?
जलाशय विकास योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए कितने जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास का समर्थन करना है? आंसर सी, 500. 61. What is the primary objective of the Coastal Cargo Promotion Scheme? तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर बी, incentivizing the shift of bulk cargo to coastal shipping and inland waterways. थोक कार्गो को तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों पर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करना। 62. The newly launched दिव्यांग कौशल योजना focuses on providing skill development programs for दिव्यांगजनों in which sectors? हाल ही में शुरू की गई दिव्यांग कौशल योजना किन क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने पर केंद्रित है? आंसर बी, आईटी, एवीजीसी, हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विसेज। 63. How much financial allocation has been made over 5 years for the deployment of carbon capture utilization and storage? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज की तैनाती के लिए 5 वर्षों में कितना वित्तीय आवंटन किया गया है? आंसर डी, ₹20,000 करोड़। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेंट नॉलेजेबल लगा तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो और हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करो। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज। Thanks for watching.